So we are doing cash flow statement today. In cash flow, we are first going to see what is cash flow statement. What is a cash flow statement? Okay. Cash, when we say, it is everything that is cash and cash equivalent. So that would be cash at hand, cash at bank, your any securities, marketable securities. अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए के shares है, you can convert it into cash in a span of 2 to 3 days at max. Okay. Now, when we see flow, okay, when the word flow, this means anything where there is inflow or outflow of cash. ओके सो हम लोग पैसा कहाँ आया कहाँ गया सिर्फ वो रिकॉर्डिंग करेंगे एक स्टेटमेंट में, और वो स्टेटमेंट को हम बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट. वी आर नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर हाउ द मनी हैज कम इन एंड हाउ इट हैज गॉन. सो नाउ based on this only, can you tell me, will depreciation be recorded in a cash flow statement? No. No. Your answer will be no, it is not recorded. Reason being, there is no inflow or outflow of cash in depreciation. It is a expense, okay, allowable expense. However, there is no inflow or outflow of cash, hence depreciation is not recorded. Okay. What about outstanding expense? कुछ पैसा है देना बाकी है तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया अपने P&L में एक्सपेंस में. ओके, दैट आई हैव टू पे समवन. विल आई रिकॉर्ड इट इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट और नॉट? अगेन नो, बिकॉज यहाँ हमने पैसा दिया नहीं है, देने वाले हैं. तो अगर इनफ्लो नहीं हुआ है ना आउटफ्लो हुआ है, जब होगा तब रिकॉर्ड कर लेना. So in a cash flow statement, any money that has come in or has gone out will hit your cash flow statement. So even this outstanding incomes, outstanding expenses will not be recorded in a cash flow statement. Fair? Now, there are two types of cash flow statements. One is the direct method and indirect method. अब जो डायरेक्ट है वो स्वीट है, डायरेक्टली करना है. इनडायरेक्ट करना है, थोड़ा उल्टा जाना है, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम. नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट में देयर इज अनदर थिंग दैट वी नीड टू सी is lots of money will come in, will go out. Okay, in that case they are saying all types of expenses are divided into three types. Okay, all types of expenses are going to be divided in one of the three types. Now they have divided all activities into three types: operating, financial और investing. Now एक एक activities को हम in detail we will see. चलो, operating, as you see, it is everything related to business. Sales, अगर सेल हुआ है तो पैसा आया कि गया? If there is sales, so you will say positive. Okay. Creditor payment, okay, पैसा आया कि गया? पेमेंट किया है, पैसा गया. परचेजेस, पैसा गया. ओके. डेटर्स रिसीट, कोई डेटर ने पेमेंट कर दिया, पैसा आया. सो जब भी पैसा आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, पैसा जाएगा नेगेटिव इफेक्ट आएगा. फेयर?
So operating is anything related to business. Let's see financial activity. Financial activities, पैसा हमने raise कहाँ से किया? So it is finance. How you have procured the finance? Shares, debentures, issued. पैसा आया के गया? When you're issuing, पैसा आता है के गया? आएगा. Okay. Shares, preference shares, debentures, redeemed. पैसा गया. Okay. Now, loan taken. पैसा आया. Okay, it will be positive effect. Now, when these shares are issued, don't you think, or debentures are issued, or a loan is taken, you will also have to incur an interest paid. This will be what? A negative. It will be पैसा गया. Okay. Dividend paid. Okay. Let's take, so this is what, when you raise money, what you have to do. Okay. This loan taken, loan repay कर दिया, पैसा गया. Okay. So you remember these, what we are doing. If you understand the concept, you don't have to worry. Let's say investing activity. एक बार तुमने यहाँ से पैसा रेस किया तो तुम उसको क्या करोगे? You will purchase plant and machinery. Okay. Land and building. Purchase किया तो कभी कभी sell भी होता है. ये सब क्या है तुम्हारा? Okay, investing activity. Another way of investing, this is investing in your own business. Another way of investing is I purchase shares of another company. Shares, debentures, purchased. It is a form of investment. यहाँ देखो issue था, don't get confused. यहाँ मैंने purchase किया तो क्या होगा? Negative. Okay. Sometimes I give a loan. Loan given. It is different from repayment. लोन गिवन इज डिफरेंट फ्रॉम रीपेमेंट. मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, चलो ना इंटरेस्ट कमा लेते हैं. सो यू रिसीव इंटरेस्ट. ओके. डिबेंचर्स तुमने खरीदे, शेयर्स खरीदे, डिविडेंड रिसीव्ड. ओके. इंटरेस्ट रिसीव्ड. तो लोन गिवन क्या हो जाएगा? पैसा गया. डिविडेंड रिसीव, पैसा आया. इंटरेस्ट रिसीव, पैसा आया. नाउ सी हियर, इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा. डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस. ओके. दिस इज द बेस ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट. आई मार्क फॉर यू विच आर द इंपॉर्टेंट वंस जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है. लोन रीपेमेंट. ओके. लोन गिवन. शेयर्स इशूड एंड रिडीम तो याद रहेगा, बट शेयर्स परचेज्ड, डिबेंचर्स परचेज्ड, इसमें कभी हो सकता है ना. अगर तुमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा. ये सब याद रखना. और दिस इज योर activity. Now see how a cash flow statement looks. Any difficulty over here? Simple. Now let's see how a cash flow statement looks. Every cash flow statement is affixed with a balance sheet. Every cash flow statement. Okay. तो देखो कैसा दिखता है.
सो ये तुम क्या करोगे, तीनों एक्टिविटीज़ का शॉर्ट में लिख दोगे, कितना पैसा आया कितना गया, ओके. एंड इसके अंदर सारे एक्टिविटीज़ आते जाएंगे. आई एम जस्ट शोइंग यू अ स्केलेटन ऑफ हाउ इट लुक्स, ओके. देन तीनों का एडिशन, क्योंकि पैसा आया फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़, ओके. यू विल राइट हियर नेट इंक्रीज और डिक्रीज. इट कुड बी द मनी has increased or decreased in the year. हो सकता है you have earned money, so it will be an increase in cash and cash equivalents. हो सकता है there is a decrease, okay, then that means you have expended more. अब ये तुम्हारा net increase or decrease in cash and cash equivalents in the year, in the current year, okay. इसमें तुम opening cash and cash equivalents डाल दोगे तो क्या मिलेगा, closing cash and cash equivalents, okay. This is how your cash flow statement will ideally look. तीनों एक्टिविटीज का ब्रेकअप, उसका एडिशन, ओके, और तुमको क्या, एड ओपनिंग, यू विल गेट योर क्लोजिंग. सिंपल, दिस इज हाउ इट विल लुक. नाउ इफ यू सी हियर, दे विल गिव यू अलग अलग एक्टिविटीज देंगे. हमको क्या करना है, वी हैव टू डिसाइड whether it is operating, financing or investing. Simple, easy, कुछ नहीं करना है, okay. Now before we even go to this, let us see one more thing. So this is how we are going to do it. अगर investing है तो investing में डाल देंगे, operating है तो operating में डाल देंगे, okay. Financing है तो financing में डाल देंगे. Now understand this, okay. When we say cash received from customers, you will say sales. इतना पैसा आ गया, तो जितना आया है वो ही लिखोगे. आउटस्टैंडिंग सेल्स नहीं लिखोगे, जितना पैसा एक्चुअली कैश सेल्स आया है वो लिख दोगे. नाउ अंडरस्टैंड दिस, माय ओपनिंग डेटर इज समवन हु हैज टू पे यू मनी, ओके, वाज 50, ओके. क्लोजिंग डेटर, जब ईयर एंड हुआ, माय क्लोजिंग डेटर इज ओनली 20. सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ईयर, you will say ma'am 30 rupees का debtor, okay, someone paid the money, 30 rupees has been paid by the debtors, hence my debtor has become less, okay. So can I say 30 rupees was received, पैसा आया, मुझे तो पैसा आया या गया उससे ही मतलब है. वापस देखो, ओपनिंग डेटर 50 था, someone had to pay me 50 rupees. अब ईयर खत्म हो गया या मंथ खत्म हो गया, माई क्लोजिंग डेटर इज 20. सो वॉट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम, समवन पेड मी मनी. वॉट विल आई डू, यू विल से नथिंग, ओपनिंग लेस क्लोजिंग करो तो तुमको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा. पॉजिटिव अमाउंट है तो लिख दो, एड इट, ओके. इट कुड बी डेटर्स, बिल रिसीवेबल, सेम थिंग विल यूज. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. माई ओपनिंग डेटर्स वॉज 100, ओके. क्लोजिंग डेटर है ना 120 हो गया, मतलब क्या, बढ़ गया. अगर बढ़ गया मतलब क्या, सो इन माई हेड इट विल बी ओके, दैट मीन्स आई हैव गिवन मोर 20 ड्यूरिंग द ईयर टू द डेटर्स, दैट इज वाई द डेटर्स हैव इंक्रीज्ड. सो आई हैव पेड मनी, ओके. ईयर द डेटर्स हैव पेड मी, सो ईयर आई कैन से 30 rupees इज रिसीव्ड. ईयर आई कैन से 20 rupees has been paid by me, मैंने पे किया टू द डेटर, तब जाके डेटर इंक्रीज हो गया. सो व्हाट आई डू, सिंपल, कुछ नहीं करना है, ओपनिंग लेस क्लोजिंग करोगे तो वो अमाउंट तुमको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव, ओके. सो यू विल गेट योर आंसर. इफ यू वांट टू फाइंड, लेट्स से माय नेट सेल्स इन द ईयर इज 100, एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग करके तुमको ये अमाउंट मिल जाएगा, ओके. यू डोंट हैव टू सी क्या आया क्या गया, सिंपल, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, ओपनिंग क्लोजिंग करो, डन. सेल्स, एड ओपनिंग, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, लेस क्लोजिंग, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल. Let's go to cash paid to suppliers. So you will start with your kharcha, cash paid, any cash paid you will start with kharcha. Kharcha मतलब क्या, your purchases
So I'll say with nothing but cost of goods sold. COGS is nothing but cost price. Okay, COGS. Add your operating expenses. I want to find how much money has been paid. Operating expenses. Let's take an example to understand creditors, bills payable, outstanding expenses. How are we going to deal with it? Okay, example. My creditors. Creditor is who? Someone who I have to pay. Opening was 100. Okay. Closing became 120. So what the creditors did? How did they increase? मतलब मुझे पैसा और मिला तब जाके increase हो गया ना creditors. 20 rupees I received तब जाके increase हो गया. So okay. So opening less closing करेंगे तो मुझे -20 मिलेगा. -20 is nothing but the money that has been received by me. So why is it negative? What are we finding here? Expense, cash paid. Okay, so यहाँ अगर negative है मतलब payment हुआ है, correct? So if I'm saying payment हुआ है 20 तो negative ही आएगा ना ये, cash paid. So opening less closing will be the cash paid. See another example. Opening 120, closing 100. ओके अब यहाँ कम हो गया तुम्हारा क्रेडिटर. ओके अगर क्रेडिटर कम हुआ तुमने पेमेंट किया है. ओके सो अगर मैं ओपनिंग लेस क्लोजिंग करूँगी तो यहाँ +20 आएगा. पैसा मिला नहीं है, आई नो पैसा नहीं मिला है, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं हाउ मच मनी इज पेड. सो योर दिस मनी इज एक्चुअली opening less closing. तो यहाँ amount has been paid how much? 20 rupees has been paid. Okay, so here it will be positive. Opening less closing. यहाँ how much money has been paid? अरे पेमेंट थोड़ी हुआ है, पैसा तो मिला है, यहाँ रिसीट हुआ है. So obviously this will be उल्टा. अगर यहाँ paid है तो this will be positive. Okay, this is important. Opening less closing करोगे. Okay, now iska another, now these are all liabilities. If you can see creditors, bills payable, outstanding expenses. Let's see what happens to stock. Stock. These are all your assets. So let's take my stock. Now when I started I had only 100 rupees worth of stock. अब 120 हो गया तो थोड़ी रिप्रोड्यूस किया स्टॉक ने. स्टॉक बढ़ा कैसे? तुमने खरीदा मार्केट से, है ना. 20 रुपये का वर्थ यू परचेज्ड. ओके इफ यू परचेज हाउ मच यू हैव पेड? यू से मैम पे किया मतलब पॉजिटिव आना चाहिए इधर. आई कैन नॉट डू ओपनिंग लेस क्लोजिंग. योर वॉट आई डू, आई वॉन्ट यू टू टेल मी कितना खर्चा हुआ. तो यू कैन टेल मी -20 खर्चा हुआ. -20 मीन्स receipt. Okay, in this case, so here if I say same example, closing less opening, 120 था क्लोज, ओपनिंग 100 था, बढ़ गया मतलब 20 रुपये का तुमने और खर्चा किया. सो इट विल बी एडेड. ओके सो योर यू विल डू माइनस क्लोजिंग प्लस ओपनिंग. सो यहाँ आएगा क्लोजिंग लेस ओपनिंग. ये सिर्फ उल्टा है. ओके देन ओनली यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर टू फाइंड आउट कितना और खर्चा हुआ है. नाउ दिस आइटम विल बी नाउ पुट ओवर हियर कैश पेड टू सप्लायर्स. तो तुम क्या करोगे? यहाँ हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट था ना, कैश रिसीव्ड and cash paid. Cash received from customers पॉजिटिव आएगा. कैश पेड जो तुमने अभी टोटल ढूंढा ना एड लेस करके, पेड टू सप्लायर यू विल सब्ट्रैक्ट. ओके ये देखो सिर्फ इतना बस, और कुछ नहीं देखना है.
आराम से just see this what we have done. Cash received from customers, I hope you understood. Cash paid to suppliers. See, cash, ये question में cash sales was for 10 lakhs and sales on account was 12 lakhs. तो अब तुम कैश सेल्स रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करोगे, या दोनों? मैम कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो सिर्फ कैश आया या गया वो रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं होता है, तो सिर्फ ये आइटम होगा, ये आइटम नहीं रिकॉर्ड होगा. ओके. पेमेंट्स ऑन अकाउंट्स पेएबल फॉर इन्वेंट्री टोटल टू दिस, सो दिस इज द पेमेंट्स दैट दे हैव मेड, तो ये रिकॉर्ड होगा. कलेक्शन अगेंस्ट अकाउंट्स रिसीवेबल वो 7,60,000. नाउ कलेक्शंस अगेंस्ट अकाउंट्स रिसीवेबल, दिस इज व्हाट दे हैव कलेक्टेड, तो ये भी ऐड हो जाएगा. कैश सेल्स एंड कलेक्शंस अगेंस्ट अकाउंट्स रिसीवेबल 7,60,000 विल बी एडेड. ओके. रेंट पेड इन कैश इज 2,20,000, outstanding rent being 20,000. So rent paid is 2,20,000 and there is another outstanding rent of 20,000. So will this 20,000 be recorded? No. The amount that is paid in cash will be recorded. Don't get confused. अरे टैक्स में कैश रिकॉर्ड नहीं होता है. अरे ये टैक्स नहीं है, ये अकाउंट्स है. अकाउंट्स में पेमेंट किया है तो रिकॉर्ड होगा. चलो नेक्स्ट देखो. 4,000 इक्विटी शेयर्स. हाँ, सो ये सब क्या था? कैन आई से ऑल ऑफ दिस वॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू बिजनेस, पैसा आया गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. नाउ कैश सेल्स जो यहाँ था, पैसा आया, पेमेंट्स मेड, पैसा गया, कलेक्शंस अगेंस्ट रिसीवेबल्स, कलेक्शंस, पैसा आया, रेंट पेड, पैसा गया. ओके, ये सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी थे. अब ये बताओ, 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड फॉर 48 lakhs, तो कितना होगा? 4 लाख इंटू 10 40 lakhs होता है, बट उनने इशू कितने में किया? 48 में, तो तुम 48 रिकॉर्ड करोगे क्योंकि उतना पैसा आया. ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग? फाइनेंसिंग, पैसा आया. इक्विपमेंट परचेज फॉर कैश, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज किया, पैसा गया. Dividend amounting to 10 lakhs was declared but not paid. If it is not paid, will I record it? नहीं मैम, पैसा कैश फ्लो हिट ही नहीं हुआ है, not recorded. कंफ्यूज करने के लिए दिया है. ओके. 4 lakh of dividend declared in the previous year was paid this year. Will I record it? Yes, it affects my cash flow this year, hence I will record it. क्या आएगा? पैसा आया कि गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिविडेंड है रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, शेयर्स इशू किया ना उसके लिए, गया नेगेटिव. एंड इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 1,60,000 वाज सोल्ड फॉर 2,40,000. इट वाज सोल्ड फॉर व्हाट प्राइस? 2,40,000. अकाउंट में कितना आया? 2,40,000. रिकॉर्ड कितना होगा? 2,40,000. ओके. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा आया, cash was increased by this much, this is your net increase decrease in cash, वो तुमको दे दिया. okay, they are saying prepare cash flow statement. okay, we'll prepare it. चलो जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है देख लेते हैं क्या क्या है. 10 lakhs 7,60,000 ऐड होगा और 7,80,000 एंड 2,20,000 लेस होगा. करेक्ट. ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, चलो इन्वेस्टिंग में हमारे पास दो ही आइटम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. 2,40,000 पॉजिटिव एंड 16,80,000 नेगेटिव. ओके, तो टोटल ये नेगेटिव आएगा, आ सकता है. लेट्स गो टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेरे पास एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव. 48 lakhs एंड 4 lakhs, तो 44 lakhs का नेगेटिव पॉजिटिव आइटम आएगा. देखो. ओके. सो नाउ इन योर एग्जाम व्हाट विल दे आस्क यू? दे माइट जस्ट आस्क यू वन, फाइंड द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तुमको सिर्फ ये देना है. 14,40,000 ऑप्शंस दिए रहेंगे.
14,40,000 पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे अजीबो गरीब। याद क्या रखना है तुमको, जो पैसा आया गया वो ही हिट करना है। अमाउंट्स दैट आर डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड यू विल नॉट टेक इनटू रिकॉर्ड। ओके, सिमिलरली इफ यहाँ जो तुम लोग ने किया कैश सेल्स ही रिकॉर्ड किए, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं किए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्रेडिट सेल्स। ओके, अब ये तीनों को तुम ऐड लेस करोगे तो तुम्हारा टोटल तुमको आ जाएगा इधर 37,20,000। ओके, यही है वो टोटल। इजी, वेरी इजी। ओके, लेट्स डू द सेकेंड वन, सेकेंड सम टुगेदर। माधुरी, नाउ यू ऑल डू इट, साथ में मेरे साथ करते जाओ। माधुरी गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर। सेल्स फॉर द ईयर टोटल्ड 96 lakhs, ही सेल्स ओनली इन कैश। क्या होगा ये, कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पॉजिटिव। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स वॉज 60% ऑफ सेल्स, तो अब 60% ऑफ सेल्स करो। आई एम डूइंग इट हियर। ओके, लेट मी मेक माई कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेल्स इज 96 lakhs, तो ये मैं यहाँ लिख सकती हूँ, दिस इज व्हाट कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ओके, कैश पेड टू सप्लायर आई हैव टू डू इन अ वर्किंग नोट, तो मैं नीचे कर रही हूँ। I have it ready. चलो, सारे खर्चे ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी और एक ही अमाउंट लिख देंगे उधर। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 43,000. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. क्लोजिंग स्टॉक is X, opening stock is, closing inventory was higher than opening, so opening is X, closing is X plus something. Okay, 43,000. now तुम लोग को ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग ने क्या बोला when we did अभी थोड़ी देर पहले, what we said, whenever there is closing stock and opening stock, closing less opening करेंगे. तो इतना देखना ही नहीं increase decrease क्या हुआ है, simply closing stock less opening stock. Now opening stock is X, closing stock is more, ऐसा बोला है, more than the opening by 43,000. So simple, very easy, plus 43,000. And this is minus X, plus X minus X 0 है ना. मैं अभी कैंसिल कर देती हूँ. तो माइनस ओपनिंग स्टॉक होगा ना, ओपनिंग स्टॉक मैंने एक्स लिया, दिस इज एक्स प्लस दिस. लेट्स गो अहेड. सिमिलर थिंग दे हैव आस्क्ड फॉर ओवर हियर. ट्रेड क्रेडिटर्स ऑन 31st March exceeded those on 31st March 2005, so closing is more than opening. ना ये क्रेडिटर्स है, ओपनिंग लेस क्लोजिंग हम क्रेडिटर्स के लिए करते हैं. Only for stock and prepaid expense we do closing less opening, बाकी सब के लिए opening less closing है. तो opening कितना है, trade creditors on 31st March 2006, that is year, exceeded those on 31st March, so which is more, 2006 वाला more है by 23,000. okay, this is less, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, ये भी जीरो हो गया. ओके, टैक्स पेड अमाउंटेड टू 7 lakhs. ओके, वेरी गुड. टैक्स पेड को हम सेपरेटली दिखाएंगे इधर, माइनस टैक्स पेड कितना है वो 7 lakhs. ओके, चलो. डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर द ईयर वाज 3,15,000. ये क्या करूँ डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का क्या करना चाहिए, इग्नोर. ओके, अदर एक्सपेंसेस टोटल टू ₹21,45,000, तो वो तो आ सकता है. अदर एक्सपेंसेस इज माई खर्चा, यहाँ मैं सारे खर्चे ऐड कर रही हूँ, प्लस
21,45,000 ऐसा बोला है ना. अदर एक्सपेंसेस total to this. Outstanding expenses on 31st March 2005 was 82 and 31st March 2006 were 91. So can I say opening outstanding expense less closing outstanding expense. Opening कितना है 82, closing is 91. Okay. Now बाकी ये सब दिस इज ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं. ये एड लेस करोगे तुम लोग. ओके, सो यू विल गेट, ये ऑलरेडी मेरे पास सोल्यूशन है इधर. ओके, सो ये सब एड लेस करते जाओगे. यू विल गेट 9,84,000. सो वील डू इट हियर. कैश रिसीव फ्रॉम सप्लायर इज 96 lakhs. ओके, ये जो अमाउंट आएगा 7 lakhs एक्सेट्रा. ये सब करने के बाद लेट्स डू. मैंने ये एड लेस किया, मुझे 7962 मिला. आई एम राइटिंग दिस अमाउंट हियर. ये लेस हो जाएगा 79,62 एंड लेस टैक्स पेड. ओके, ये भी लेस हो जाएगा. सो लेट मी चेक. 96 lakhs minus 7 lakhs. I'm getting 9,38,000. 9,38,000 आ रहा है मेरा आंसर. लेट्स सी दी अदर एक्टिविटीज. न्यू मशीनरी एंड फर्नीचर वर परचेस्ड. ओके, ये कितना परचेज किया है 10 लाख. सो कैन आई से दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव. परचेज हुआ है. राइट्स इशू वॉज मेड ऑफ 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज. तो 50,000 इंटू 13 हो जाएगा. सो यू गेट 65 lakhs. ओके, इशू वॉज मेड. सो इट इज वॉट फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव. डिविडेंड्स टोटलिंग टू 4 lakh वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर्स. ये क्या हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव. कैश इन हैंड एंड बैंक as on, so this is your opening expense. Okay, opening cash and cash equivalents, you will add it to your total current year का net increase decrease. तो investing का एक item है, financing के 2 items है, and then we are done. चलो, investing का मेरा कितना है. plant and machinery purchase, 10,27,500. ओके, एंड कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है. राइट्स इशू एंड डिविडेंड. राइट्स इशू एंड डिविडेंड पेड 65 lakhs. दिस इज 4 lakhs. सो 61 lakh इधर आ जाएगा. ओके, सो नेट इंक्रीज डिक्रीज मेरे केस में हो रहा है 38,000 प्लस 10,20 माइनस है वो 9,38,000 माइनस 10,27,500 प्लस 60. 60 lakhs 10,500 is what I am getting. There has been a positive amount. मेरे केस में positive amount आ रहा है. Add your opening cash and cash equivalents. Opening cash and cash equivalents कितना है 2,13,800 plus 2,13,800. You will get your closing amount. 62,243,00.
ओके करते साथ में. इट इज़ ऑन द सेम टू सेम लाइन्स. ओके, सो इसका सोल्यूशन है, इसका सिर्फ सोल्यूशन साथ में देखेंगे. सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,20,00,000 एंड कंपनी सेल्स गुड्स ओनली फॉर कैश. तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो 60% ऑफ सेल्स. तो करो 60% ऑफ 72 lakhs. ये तुम्हारा COGS हो जाएगा. ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री. सो वॉट यू डू, क्लोजिंग लेस ओपनिंग करते फॉर स्टॉक. सो क्लोजिंग वॉज हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री and trade creditors on 31st March 2011 exceeded those that of 2010 by 28,750. so which is more, closing is more. यहाँ हम क्या करते हैं, this is for stock we do closing less opening, for creditors we'll do opening less closing. तो तुम्हारा ये नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा because this is higher. okay, net profit before tax was 17,25,000 and tax paid amounted to this much. this is net profit before tax. net profit के लिए जगह नहीं है. ओके, इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी ये डायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट के लिए जगह नहीं है. बाकी क्रेडिटर्स डेटर्स हम जो करते हैं वैसे. टैक्स अमाउंटेड टू दिस विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ये नहीं आएगा. ओके, डेप्रिसिएशन. अदर एक्सपेंसेस टोटल टू सो मच, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन 31st March एंड दिस इज 2010 एंड 2011 टोटल टू दिस मच एंड दिस मच रिस्पेक्टिवली. तो तुम यहाँ क्या करोगे, ओपनिंग लेस क्लोजिंग. ओके, न्यू मशीनरी एंड फर्नीचर कॉस्टिंग 12,84,375 आर परचेज. तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी negative. rights issue was made at a premium of 75, two shares of 250 at a premium of 75. so 325 का share है into 2,500. so I'm getting 8,12,500 was of rupees this. हाँ, so कितना होगा, ये तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव. डिविडेंड एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वर पेड. सो ये तुमने पेमेंट किया है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव. कैश इन हैंड एंड बैंक ऑन 2010, ये तुम्हारा ओपनिंग कैश बैलेंस है. ओके, चलो देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन हमने किया है. ओके, सो सेम थिंग, यू विल स्टार्ट विथ कैश सेल्स. दिस आई वुड प्रिफर इफ़ यू डू इट इन द वर्किंग नोट. ये जो ना इतने सारे करने की ज़रूरत ही नहीं है. क्या करोगे, COGS प्लस आई विल डू दिस ओनली दिस वन पार्ट. COGS opening creditors less closing creditors. okay, then क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक. ये सिर्फ उल्टा करते हैं. ओके, फिर ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. चलो, सेल्स फॉर द ईयर इज दिस. तो वो तो चला जाएगा अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स. कंपनी सेल्स फॉर गुड्स. ओके, कैश इज COGS इज 72 lakhs. क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री. सो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ स्टॉक पे आ जाएगा. क्लोजिंग वॉज हायर देन ओपनिंग. ओके, बाय हाउ मच, 53,750. ओके, trade creditors on 31st March, that is closing, exceeded those on opening. So closing exceeded the ones on opening by how much, 28,750.
ये माइनस, ओके ये माइनस, तो ये तो कट हो जाएगा ऑपोजिट्स, ओके। फिर और भी था, अदर एक्सपेंसेस इज दिस, अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली दे दिया है 2681250, 2681250, ओके। Outstanding expenses on 31st March and this total to 1 lakh to 500 and this respectively. Outstanding expenses on 31st March मतलब ओपनिंग था वो कितना है 1,02500 and this is closing 113,750, 113,750, ओके बस इसके अलावा कुछ नहीं है। आई एम गोइंग टू ऐड ऑल ऑफ दिस। अब इसका क्या करेंगे, ये -x हो गया, ये लेस हो जाएगा एंड दिस विल बी नेगेटिव अमाउंट, है ना। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट ईच अमाउंट विल बिकम नेगेटिव। सो बेस्ड ऑन दिस आई एम गोइंग टू, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग, यहाँ हमने इंडिविजुअली किया है, ये तुम ऐसे भी कर सकते हो, ओके और ये पूरा अमाउंट वहाँ जाके लेस हो जाएगा बिकॉज दीज आर परचेजेस, यू विल सब्ट्रैक्ट इट, okay, and subtract your tax from here, you will get this item. Now machinery we know एक ही है इधर, कहाँ गया machinery, हाँ new machinery, this was investing negative और बाकी हाँ, so ये purchase of machinery ये negative आ गया और ये तुम्हारा shares, एक यहाँ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव, दोनों हो गया। जो भी ऐड लेस करोगे यू विल गेट दिस आइटम। अमाउंट अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीज है और अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीज है। तो यहाँ पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है, ओपनिंग तुमको दे दिया है, देखो इधर, यू विल ऐड बोथ, यू विल गेट द क्लोजिंग, इजी, दिस इज डन। नाउ सेम टू सेम यहाँ फोर्थ वाला सम होमवर्क के लिए ले सकते हो, ओके सेम तुमको रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, इशू ऑफ शेयर्स, ऑल यू हैव टू डू इन कैश फ्लो इज फिगर आउट वेदर इट इज ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, बस योर चैप्टर इज डन इन दैट, ओके। नाउ दिस वाज योर डायरेक्ट मेथड, लेट्स डू अ फ्यू सम्स ऑन इनडायरेक्ट मेथड नाउ। Now see on the screen, this is how normally we find our net profit. क्या करोगे, सेल्स लेस COGS जो तुम्हारा ट्रेडिंग एक्टिविटी में होता है, लेस ऑल योर एक्सपेंसेस, ओके। तो यहाँ तुमको GP मिल जाएगा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओके। नॉन ऑपरेटिंग इनकम यू विल ऐड, इनकम्स यू विल ऐड एंड एक्सपेंसेस यू विल सब्ट्रैक्ट, ओके। गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रीसिएशन सब लेस करोगे, यू विल गेट NPBIT लेस द इंटरेस्ट, NPBT यू विल गेट योर टैक्स, ओके। दिस इज हाउ वी नॉर्मली गो। नाउ अब होगा क्या, ये वाले केस में हमको है ना, वी वांट दिस, वी वांट आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और यू कैन से वी वांट आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट कैश बोलते हैं ना हम, तो हमको ये आइटम चाहिए, we want this item, that's what we write, net operating income, net operating expense, वही करते हैं ना हम हमारे कैश फ्लो में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब नेट कैश कितना आया, ओके। नाउ ओनली इन दिस पार्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन is they will not give you operating profit nor will they give you these things. What they will give you is NPBT, NPBT देंगे। अब NPBT से तुमको कहाँ आना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, you will be given this amount and you have to come here. So now tell me, अगर तुमको NPBT दिया है and you want to reach operating profit, इंटरेस्ट ऐड करोगे तो लेस, उल्टा करेंगे सब,
डेप्रीसिएशन, बट लेना नहीं है, हाँ पता है मुझे लेना नहीं है, इसीलिए हम क्या करें, एनपीबीटी में ऐड कर देंगे, वील रीच ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एनपीबीटी हमने डेप्रीसिएशन लिया ही नहीं है ना। हाउ डिड वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट? यू टुक सेल्स लेस सीओजीएस लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मिल गया तुमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये सारे आइटम्स एनपीबीटी में रिकॉर्डेड है, तुमको क्या करना है, ऑपोजिट इफेक्ट देना है ताकि वो रिकॉर्ड निकल जाए, इजी। सो इंटरेस्ट अगर रिकॉर्ड किया है निकाल दो, डेप्रीसिएशन तुमने लेस किया है निकाल दो, सो यू विल टेक व्हाट, डेप्रीसिएशन ऐड होगा, गुडविल ऐड होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे और इनकम्स लेस होंगे नॉन ऑपरेटिंग टू गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। Okay, that is why it is called indirect method. From NPBT you are going to go to operating profit. See here, you start cash from operating activity, NPBT, add interest, depreciation, goodwill, non-operating expense and subtract the non-operating income. Whatever you get is cash flow, cash from operating activity. Then there are two things that you have to do. Okay, first is remove the before working capital changes, but working capital तो तुमको रिकॉर्ड करना है, डेटर्स क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, वो तो हम रिकॉर्ड करते ही है। तो अब ये याद रखो, आई लव देवानंद, डोंट लव इम्तियाज अली। ओके, आई लव इज पॉजिटिव, डोंट लव इज नेगेटिव। ओके, so increase in liabilities you will add, decrease in assets you will add, decrease in liabilities subtract, and increase in assets you will subtract. All you have to see from your working capital, working capital होता क्या है, stock, debtors, okay, creditors, bills receivables, bills payable, वो सारे items, okay, वो तो तुमको record करना ही है। तो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स क्या होगा, ऐड या लेस, ये मत देखो, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज एसेट्स नेगेटिव, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज लायबिलिटी पॉजिटिव, डिक्रीज इन एसेट्स पॉजिटिव, डिक्रीज इन लायबिलिटी नेगेटिव। ओके, इसके बाद you will get operating profit after working capital changes less the tax paid, you will get cash from operating activity. Now in indirect method this is the only change, your two other activities remains the same, from financing, investing activity, बाकी सब same है। अगर देखो बाकी सब to everything else is the same, only your first activity changes। आराम से देखो क्या हुआ, can we go ahead? ओके, आई एम अज्यूमिंग ये इतना समझ में आ गया, क्यों हमने किया वो भी समझ में आ गया। ओके, अब वो क्यों अब भूल जाओ, बस अब मैंने तुमको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, एनपीबीटी में क्या ऐड करना है, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे रिकॉर्ड करने हैं। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर इनडायरेक्ट मेथड, यू विल हैव सम एडजस्टमेंट्स गिवन, और लाइफ में हमेशा एडजस्टमेंट्स पहले करना है, लाइफ में एडजस्टमेंट्स पहले करना है। तो व्हेन यू स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स, व्हाट यू विल डू, यू विल रीड द एडजस्टमेंट, राइट द जर्नल एंट्री, नोट्स में जाके जर्नल एंट्री लिख दोगे। हर जर्नल एंट्री का लेजर बनाना पड़ेगा। ओके, लेजर बनाना पड़ेगा। हाउएवर लेजर वही आइटम्स का बनेगा जो बैलेंस शीट में तुमको दिखते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी दिखता है, हाँ बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल दिखता है, उसका बनेगा। ओके, अगर तुमको तुम्हारे बैलेंस शीट में इनकम टैक्स प्रोविजन दिख रहा है तो बना लो उसका लेजर। ओके, डिविडेंड इज नॉट सीन इन योर बैलेंस शीट, सो डोंट पुट इट, डोंट मेक अ लेजर फॉर डिविडेंड। ओके, डायरेक्टली पुट इट इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, वील सी। ओके, आइटम्स विच जिसका लेजर नहीं बनाना है उसको डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम पोस्ट कर देंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन, एक स्वीट हार्ट अकाउंट बनेगा हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन, वहाँ से हमको एनपीबीटी मिलेगा। याद है हमको एनपीबीटी से स्टार्ट करना है। ओके, नाउ इसके एक और, देर आर सम सर्टेन रूल्स यू हैव टू रिमेंबर। टू वेरी नाइस पीपल, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड, इनका हमेशा हमेशा ओके
दोनों कंसिडर होंगे, लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर दोनों कंसिडर होंगे. कंसिडर इट इवन इफ देर इज नो एडजस्टमेंट. ओके, व्हेन आई से कंसिडर इट व्हेन देर इज नो एडजस्टमेंट, opening and closing both are going to be posted. Opening and closing both are going to be posted. For everything else only difference is posted. So if the share capital last year is 5 lakhs and this year is 4 lakhs, immediately you will say 1 लाख का difference हुआ है, 5 लाख था अब 4 लाख हो गया, मतलब redemption हुआ है. Financing activity negative. ओके, पैसा कम, शेयर कैपिटल कम हो गया मतलब पैसा गया है ना. नाउ यहाँ अगर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड दोनों रिकॉर्ड करना है तो कैसे रिकॉर्ड करोगे? देखो, लास्ट ईयर का पेड, करेंट ईयर का प्रपोज्ड. लास्ट ईयर का पेड, करेंट ईयर का प्रपोज्ड. अगर लास्ट ईयर का पेड है तो तुम्हारा वो कहाँ चला जाएगा? तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में. पेड अमाउंट है ना, मतलब पैसा आया या गया? अरे गया है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दोगे. ओके. अगर प्रपोज्ड है तो इट इज अ प्रोविजन. इफ इट इज अ प्रोविजन इट विल गो इन योर P&L अप्रोप्रिएशन. अंडरस्टैंड? P&L अप्रोप्रिएशन इज नॉट लाइक अ नॉर्मल P&L, इट इज रिजर्व्स, प्रोविजंस एंड डिविडेंड. तो यहाँ चला जाएगा ये. ओके, नाउ लेट्स डू द सम्स. डोंट, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत लेस है. देखो एक सम कितना बड़ा है, यहाँ से स्टार्ट होता है. ये तुम्हारा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट है, अब जाके ख़त्म होगा. ओके, अब इतना बड़ा सम के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल एक सम करेंगे, बट वील डू इट प्रॉपर्ली. ओके, लेट्स स्टार्ट. Okay, now see here, fifth wala question we are doing. From the following balance sheets of A Limited, make out a statement of cash flow. Okay, we'll make the statement, but what we'll do first, हमेशा लाइफ में क्या करना है? adjustment. So let's read the adjustments. Depreciation of 10,000 and 20,000 has been charged on plant and on plant account and land and building account respectively. तो plant पे 10,000 है, land and building पे 20,000 है in the year 2000. ओके, 20 साल पुराने सम्स करा रहे हैं. ओके, तो अब पहले क्या है? एडजस्टमेंट्स करोगे तो हर एक चीज़ का पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? हर एडजस्टमेंट का तुमको जर्नल एंट्री लिखना पड़ेगा ना. डेप्रिसिएशन इज चार्ज, डेप्रिसिएशन 30,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी. ओके, ना सिर्फ इसको देखते हैं एक एक. लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी बोथ आर बैलेंस शीट आइटम्स, दोनों का लेजर बनेगा. सो आई एम राइटिंग फर्स्ट लेजर एंड माई सेकेंड लेजर. What about depreciation? Depreciation will go directly in my cash flow statement. Operating activity, okay, positive. क्यों? याद है हमने यहाँ देखा था उल्टा, डेप्रीसिएशन इधर चला जाएगा, NPBT में ऐड हो जाएगा. ओके, नॉन कैश आइटम है तो भी बिकॉज वी आर गोइंग उल्टा. ओके, डेप्रीसिएशन में ऐड हो जाएगा, डेप्रीसिएशन NPBT में ऐड हो जाएगा, तो वो चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव. ओके, ये क्या हो जाएगा? इनका लेजर्स बनेगा, लेजर्स में हम ये पोस्ट करेंगे. नेक्स्ट देखो, interim dividend of 20,000 has been paid in the year 2000. dividend paid. ओके, सो क्या आएगी जिसकी जर्नल एंट्री? interim dividend to cash and cash equivalents. money is paid तो to cash bank आएगा. ओके, so now anything which is to cash is nothing but your cash flow statement. dividend has been paid. Can I say it is financing activity? Negative. ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव. इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड किधर जाएगा? याद है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ये एनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला गया. डेप्रीसिएशन कहाँ गया ये? हाँ, डेप्रीसिएशन हमने क्या किया? ऐड कर दिया इधर. अब देखो ये किधर जाएगा? कहाँ गया? हाँ, now see where this will go.
दिस विल गो इन योर PNL अकाउंट. अप्रोप्रिएशन, PNL अप्रोप्रिएशन में तीन ही चीज़ें आती है. ओके, PNL अप्रोप्रिएशन में तीन ही चीज़ें आती है, डिविडेंड्स, प्रोविजंस, ओके, डिविडेंड्स, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स. तो ये डिविडेंड इधर चला जाएगा, PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखो क्या है जर्नल एंट्री. Income tax was paid, so tax to cash balance, cash and cash equivalents, income tax is paid. Anything to cash will go in your cash flow statement. Operating activity negative है ना, कैश पेड हम लिखते हैं. इनकम टैक्स तुम्हारा इसका लेजर बनेगा, तुम्हारा बैलेंस शीट आइटम है ये. ओके, short-term investments were sold at a profit of rupees 3000. What is short-term marketable securities? It is nothing but a cash and cash equivalent. ना सही है. बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में बेचा तुमने? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3000. वी अंडरस्टैंड प्रॉफिट, बट खरीदा कितने में? तो कोई बात नहीं, यहाँ देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स 15,000 के थे, अब 10,000 के हो गए. ओके, यू हैड 15,000 वर्थ, नाउ इट इज 10,000. and you sold it at a profit of 3000. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स were sold at a profit of 3000. now see here, मतलब कितने का बेचा है ड्यूरिंग द ईयर? वर्थ 5000. सो दिस इज नॉट 18 यार, इडियट है. 5 मतलब 5000 का बेचा है, प्रॉफिट 3000 का हुआ, तो तुम्हारे अकाउंट में कितना आया? 8000. करेक्ट. नाउ since short term investments is nothing but cash and cash equivalents, I'm not even writing that, so I'm writing bank is nothing but cash and cash equivalents. so ये डेबिट टू क्रेडिट. ओके, ऐसा आता है 5000, 8000, 5000, 3000. can't be like that. so what we do, cash and cash equivalents to PNL. pay attention what is happening here. cash and cash equivalents is 8000. okay, बैंक इज नथिंग बट कैश ना, कैश बैंक हम ऐसे लिखते हैं. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कैश, और ये PNL. तो हमारा नेट इफेक्ट 5000 डेबिट, 8000 डेबिट, 5000 क्रेडिट, तो 3000 का ही इफेक्ट आएगा इधर. ओके, दिस इज व्हाट वी डू हियर. ना इसका हम क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में हम ये कैश एंड कैश का हमारा होता है ना, ओपनिंग में डाल देंगे, और ये PNL में वी विल पुट इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ओके, तो ये नेगेटिव आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव. सो देखो ये सब हम लोग ने ऐसे ही पोस्ट किया है क्या? नहीं. $3000. ओके, डेप्रीसिएशन हो गया. नाउ इसके अलावा और क्या देखा था हमने? टैक्स पेड, इधर टैक्स पेड ज़्यादा था ना, 35 ही था. ओके, देन हाँ ये देखो 3000 हमने इधर ओपनिंग में ऐड कर दिया. ओके, डिविडेंड पेड, यहाँ देखो 20,000 यहाँ लिखा है ना हमने, फ्रॉम आर interim dividend paid. okay, financing activity negative. also we have written here 1 2 3. okay, that means we have to make these ledgers. चलो अब लेजर्स बनाते हैं. लेजर्स में ओपनिंग क्लोजिंग आइटम्स कहाँ से आएंगे? फ्रॉम योर बैलेंस शीट. लैंड एंड बिल्डिंग, दिस विल बी, नाउ रिमेंबर दिस, जिसको पता नहीं है, डेबिट साइड पे है ना ओपनिंग बैलेंस एसेट का आता है. फॉर लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस का आता है, इतना याद रखो बस. ओके,
सो ये तुम्हारा डेबिट साइड में चला जाएगा, ये क्रेडिट साइड में। ओके ये दोनों अमाउंट्स पोस्ट हो गए। फिर याद है डेप्रीसिएशन इधर था 20, सिमिलरली यहाँ 10 का डेप्रीसिएशन आ गया। ओके ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट्स प्लांट एंड मशीनरी के भी लिख दो। सो प्लांट ये दोनों, दिस इज गॉन, वी हैव पोस्टेड दीज। व्हेन यू पोस्टेड देन यू डोंट हैव टू लुक एट इट अगेन। चलो ओके अब जो भी तुम्हारे पास आया वो बैलेंसिंग फिगर्स। तो अगर तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर इधर आया है क्रेडिट साइड पे, इट विल बी बाय सेल। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आया है, इट विल बी टू परचेजेस। ओके सो ये अमाउंट्स हमको फिर पोस्ट करने पड़ेंगे। दैट मीन्स यू हैव सोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, इट विल बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव। परचेज किया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव। देखो ओके ना नेक्स्ट देखो टैक्स। ओके टैक्स इज अ लाइबिलिटी। क्वेश्चन में देखो कहाँ है तुम्हारा टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके ये तुम्हारा ओपनिंग है तो ओपनिंग विल कम क्रेडिट साइड। कितना है 40 एंड 50 इधर ऐसा लिखा है उसने। हाँ ये ओपनिंग बैलेंस है 40 एंड क्लोजिंग इज 50, 40 50। ओके ये बाय कैश याद है, इधर हम लोग ने जर्नल एंट्री लिखा था, वी सेड वी विल पुट इट बिकॉज इट इज ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड पे ही लिखोगे। ओके 30,000 बाय कैश। देखो 35 सॉरी 35 का अमाउंट है ना, तो ये यहाँ आ गया टैक्स। जो भी बैलेंसिंग फिगर आया दैट विल बी शॉर्ट, तुमको शॉर्ट पड़ा तो तुम प्रोविजन बनाओगे बाय पीएनएल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ओके पीएनएल अप्रोप्रिएशन, दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्स, सो यू विल मेक अ प्रोविजन फ्रॉम पीएनएल। तो यहाँ आ गया देखो ये अमाउंट। ओके सो दिस इज ऑल्सो डन। इंटरिम डिविडेंड हमने यहाँ पोस्ट कर दिया, डिविडेंड प्रोविजन एंड रिजर्व्स वो इधर आता है। So all your journal entry items are posted. Now let's go to your balance sheet. बैलेंस शीट के हर एक आइटम को देखना है, ऐड बढ़ आए के कम हो रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, दैट मीन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यू हैव इशूड शेयर्स पॉजिटिव ऑफ ओनली 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिडीम हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव। ओके दो दो कर रहे हैं। सो गो टू योर financing activity, preference shares, issue of shares. Okay next reserves. Okay reserves किधर जाएगा, reserves provisions will go in your P&L appropriation. So P&L में opening and closing items डाल दो। opening will go on credit side, closing will go on debit side. देन नाउ सी रिजर्व्स में क्या हो रहा है, 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। 30,000 मतलब क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है ना जीआर में, सो इट विल गो इन फ्रॉम पीएनएल अप्रोप्रिएशन। देखो ओपनिंग क्लोजिंग आइटम्स लिख दिया, बाय ओपनिंग टू क्लोजिंग। ओके प्रोविजन, हाँ यहाँ देखो ट्रांसफर टू जीआर। हाँ ये भी पोस्ट कर दिया हमने, ये भी पोस्ट कर दिया। अब यहाँ देखो प्रपोज डिविडेंड, आई टोल यू 2 आइटम्स यू शुडंट फॉरगेट, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। दोनों का क्या है, लास्ट ईयर का पेड, करेंट ईयर का प्रपोज्ड, लास्ट ईयर का पेड, करेंट ईयर का प्रपोज्ड। लास्ट ईयर का पेड 42,000 इज पेड, current year is 50,000, this is proposed, so if it is proposed it will be from provision for, it will be provision for dividend which will be from your P&L appropriation. अगर पेड है तो ये किधर जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव, ये कहाँ जाएगा, P&L। P&L देखो यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
डिविडेंड पेड. ओके, ये भी हो गया. क्रेडिटर्स. नाउ क्रेडिटर्स, bills payable. Remember this. Now how you are going to do this? ये याद है ना, हमने किया था. I love देवानंद पॉजिटिव, don't love इम्तियाज अली नेगेटिव. ओके, so I love increase liabilities. What is happening? All you have to see is what is happening to creditors. increase हो रहा है. अगर increase हो रहा है, डिफरेंस कितना है? करो 83 माइनस 55, 28,000 का डिफरेंस है. 28,000 मतलब विल बी पॉजिटिव. ओके, बिल्स पेएबल डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है मतलब डिक्रीज लायबिलिटी 4,000 नेगेटिव. देखो इधर, ओके. प्रोविजन फॉर टैक्स, हमने एक और लेजर बनाया है टैक्स का, तो उसमें ये पोस्ट हो जाएगा ना. ओपनिंग क्लोजिंग आइटम्स वो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है. चलो, नाउ देन ओनली वी गॉट दिस बैलेंस फिगर. नाउ वेयर वर वी वर ऑन आवर. तो ये साइड पूरा का पूरा पोस्ट हो गया. ये साइड देखते हैं. डेटर्स, डेटर्स क्या हो रहा है? एसेट्स देखो, अभी डेटर्स इज इंक्रीजिंग. इंक्रीज एसेट नेगेटिव 40,000 नेगेटिव. स्टॉक, स्टॉक क्या है तुम्हारा? इट इज योर एसेट. क्या हो रहा है? स्टॉक को इंक्रीज हो रहा है. इफ इट इज इंक्रीज एसेट बाय 32,000, 32 विल बी नेगेटिव. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या हो रहा है? अगेन इट इज योर एसेट, इट इज इंक्रीजिंग. ओके, सो यह देखो तीनों मेरे, इन माई केस ऑल थ्री आर इंक्रीजिंग, इट ऑल थ्री विल बी नेगेटिव. सी हियर, इंक्रीज एसेट्स. ओके, ये हो गया. सो नाउ दे माइट जस्ट आस्क यू इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टू डू ओनली दिस मच. तो उसमें तुम्हारा शॉर्टकट याद रखो, हो गया. ओके, इसके बाद टैक्स पेड करो जो भी आया तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नाउ व्हाट यू विल डू विद दिस? दिस इज योर ओपनिंग कैश और ये भी ओपनिंग कैश है, तो ऐड कर दो. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इज नथिंग बट योर कैश, वी सेट कैश इक्विवेलेंट. ये क्लोजिंग आइटम है तो दोनों को ऐड कर दो. वही किया हमने. ओके, एंड नाउ सिंस वी आर डन विद दिस वी विल जस्ट, पहले ये पोस्ट करोगे, ऐड लेस करोगे, यू विल गेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लेस टैक्स पेड करना मत भूलना, कैश पेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. देन यू डू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमने पोस्ट कर दिया. क्लोजिंग आइटम एक टोटल अमाउंट लिखो बाहर. Similarly, you'll do for investing activity, add operating, investing, financing. You will get increase or decrease in cash. Now, if it is a negative amount, that means there is a decrease in cash. Okay, add it to your opening, you will get your closing amount. Done.